میں اپوزیشن کا وجود سرے سے ہو ہی نہ, اس طرح نہ یہ ملک چل پائے گا. ملک کے لوگوں میں, ملک کے طول و عرض میں, خیبر پختونخوا سے لے کر گوادر تک اور گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک کوئی ایسا ملک کا حصہ نہیں ہے اس وقت جس میں شدید اضطراب نہ پایا جاتا ہو, جہاں پر سچویشن والیٹائل نہ ہو. 26ویں آئینی ترمیم کر کے آپ نے عدلیہ کو ایک ذیلی محکمہ بنا دیا ایگزیکٹو کا, پیکا کے قوانین لا کر میڈیا کے سر پر تلوار لٹکا دی, کالے قوانین بنا دیے کہ کوئی احتجاج نہ کر سکے, کوئی اکٹھا نہ ہو سکے. اور اب آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس تمام ماحول میں جہاں پر اس وقت اس ملک کا کسان بے حال ہے, مڈل کلاس بے حال ہے, تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے, اپنے گیس اور بجلی کے بل نہیں دے پا رہا, اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا, اپنے گھر کے کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہا, کاروباری طبقہ ہڑتالوں پر ہے, اور اس صورتحال میں آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں گفتگو نہ ہو, اپوزیشن اکٹھی نہ ہو, بات چیت نہ کرے, کوئی حل نہ تجویز کرے. یہ فسطائیت ہے, اور ایسی فسطائیت کہ یہ جو جماعتیں آج حکومت میں ہیں, ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم, جس میں یہ تمام جماعتیں شامل تھیں, میریٹ ہوٹل اسلام آباد کے اندر جہاں پر پہلی کانفرنس ہوئی, عمران خان صاحب کا دور تھا, پہلی کانفرنس ہوئی, وہاں پر نہ کسی نے ہم سے پرمیشن مانگی, نہ ہم نے کسی سے پرمیشن لی, اور نہ ہی اس وقت کوئی حکومتی ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپوزیشن کے اکٹھ کو روکنے کی اس وقت کوشش کی گئی. یہ جو آج جماعتیں حکومت میں, بڑی بڑی تقاریر کی انہوں نے اس کانفرنس میں, جمہوریت کے لیے زمین اور آسمان کے کلابے انہوں نے ملائے, لیکن آج ان کا اپنا حال دیکھیے کہ جمہوریت کی باتیں کرتے کرتے, کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرتے کرتے, رائٹس کی باتیں کرتے کرتے, آج جب خود حکومت میں ہے تو اپوزیشن کو تمام حقوق سے انہوں نے محروم کر دیا. تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. آج کی جو ہماری کل جماعتی کانفرنس ہے, ہم اس کو پھر بھی منعقد کریں گے. ہمیں کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر قریب میں ایک جگہ ہے جہاں پر ہم نے بندوبست کر رکھا ہے, ہنگامی بنیادوں پر بندوبست کیا. اسلام آباد کا کوئی اور وینیو ہمیں اویلیبل نہیں تھا. انتظامیہ نے ہوٹلز کے مالکان کو یہ ہدایات جاری کی کہ پورے اسلام آباد میں مارکی ہالز والوں کو, بینکویٹ ہالز والوں کو, کہ اپوزیشن کو کوئی جگہ نہ دی جائے. اس کے باوجود ہم نے راتوں رات ایک جگہ پر انتظام کر لیا. اس کی لوکیشن, وہ سارا کچھ یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہے, ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور ہماری تمام سمپتھیز بھی ہیں جو اس ہوٹل, ٹیولپ ہوٹل کی ایڈمنسٹریشن ہے, کہ ان کو جس پریشر کا سامنا کرنا پڑا, ان کے اوپر جو جبری ہتھ کنڈے آزمائے گئے اس کانفرنس کو روکنے کے لیے, ان کا کوئی قصور نہیں. وہ تو ایک کاروباری آدمی ہے. لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اس وقت کیا نظام رائج ہے, اور جو بھی نظام رائج ہے اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہے, اس کو ایک ہی لفظ میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. یہ ہائیبرڈ وغیرہ کی اصطلاح اب پرانی ہو چکی. یہ عسکری جمہوریت ہے, اور یہ عسکری جمہوریت ہمیں قابل قبول نہیں ہے, نہ ہی پاکستان کے عوام. ہم یہاں آئے تھے پورے پاکستان سے, تحریک تحفظ پاکستان کی دعوت پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ آئے کہ یہاں ہم بیٹھیں گے, اور پاکستان جس دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے اور جس تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں گے, اور اپنی آئینی, قانونی اور انسانی بنیادوں کے اوپر, شرعی بنیادوں کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں, وطن سے وفاداری, اس کو نبھانے کے لیے منصوبہ بندی پلان کریں گے, ایک لائحہ عمل بنائیں گے, اور اس کے مطابق پاکستان میں جدوجہد کریں گے. لیکن یہ جو نشانیاں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے روکنا, ایک ہوٹل کے اندر پروگرام نہ کرنے دینا, اس بات کی دلیل ہے یہ بوکھلایا ہوا سسٹم ہے, کمزور ہے, انتہائی یہ پیرالائز سسٹم ہے. یہ گولی کے بل بوتے پر, طاقت کے بل بوتے پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ بلڈوز کر لے گا. آپ دیکھیں کسی کے پاکستان میں کوئی بھی, چاہے وہ پاکستان کی مختلف قومیتیں ہوں یا مختلف ادیان ہو, کسی کی بھی یہاں پر جو حقوق ہے وہ اس کو پریکٹس کرنے نہیں دیا جا رہا. سارا ملک بند کیا ہوا انہوں نے. رات جاتے تھے ہم لوگ زیارت کرنے کے لیے بائی روڈ, وہ راستے بند کر دیے. اور جو وزیر داخلہ صاحب اعلان کر کے پاکستان سے ہی چلا گیا, کوئی کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی کسی سے بات نہیں ہوئی. ہم تنگ آ چکے ہیں اس ظلم کے ساتھ, فسطائیت کے سے. لہذا ہم بھی
फैसला किया है कि अपने आईनी हुकूक को अपनी क्या उसे कहते हैं कि हर लिहाज से हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और वलो बलग मा बलग, ये में मारे गोलियां मारे हमारे सर काट दें, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह अजीज। हम अपने, मैंने कल ऐलान भी किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से मूव करना है कराची और फिर इमदान की तरफ। हम नहीं मानते इनके किसी भी, हमारे पर एतमाद नहीं है। ये सबसे बड़े झूठे लोग हैं, कहते हैं कि इलेक्शन बड़ा फ्री एंड फेयर हुआ है। कितना बड़ा झूठ है। अवाम ने पर ढाका डाला है, अदलिया कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ, हर चीज इररिलेवेंट है। सियासत के, रियासत के सारे सतून ढह चुके हैं, अपने बोझ तले दब चुके हैं। इस वतन को निकालना, जो हमारी मादने वतन इन हालात से, हम सारे इकट्ठे होंगे, पीछे नहीं हटेंगे और इंशाअल्लाह इस राह में मर जाना शहादत है। हम कभी भी अपने वतन के साथ खयानत करने वालों को क्या उसे कहते हैं कि इस वतन को तोड़ने, फोड़ने और तबाह बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे तमाम अकाबरीन ने बात की, बस महमूद साहब आखिर में बात करेंगे। मैं सिर्फ दो बातें पूछना चाहता हूँ। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक ट्वीट आया है और कुछ बताया गया कि कुछ ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। हम तो समझते हैं, हमेशा हम समझते हैं कि पूरी दुनिया के साथ हमारी ट्रेड होनी चाहिए और हम हर सूरत में जो है ना चाहते हैं कि मुल्क के एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट की निटी ग्रिटी क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है। आइन जिस बात का पाबंद करता है कि सबसे पहले जिस सूबे में जिसके जो वसाइल हैं, सबसे पहले उसकी आवाम का उसके ऊपर आके, तो हम ये बात हर सूरत में जानना चाहते हैं कि क्या इसमें जो लोकल कम्युनिटी है जिसको आइन प्रोटेक्शन देती है कि उनकी सूबे की वसाइल पे सबसे पहले उन इलाके की लोगों की हकीमियत है, अथॉरिटी है, उनका हक है, क्या उसको तस्लीम किया गया है कि नहीं। फिर सूबाई को 18 अमेंडमेंट के बाद तो सूबाई हुकूमत का बनता है। हम समझते हैं कि किसी सूबाई हुकूमत के मामले में वफाक को हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। वो सूबाई हुकूमत अपने मफादात के मुताबिक एग्रीमेंट करे, बेशक एक तरीकाकार हो। तो एक तो हम इसके ऊपर जो है ना, हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि इस जो एग्रीमेंट हुआ है इसकी डिटेल्स क्या है और तरीक़ाकार क्या है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस वक्त इमरान खान जेल में है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जेल में है कि वो कुछ लोगों को नापसंद है। जितनी भी उसके खिलाफ केसेस है वो केसेस गैर कानूनी है, इमोरल है और इसकी बुनियाद में कोई हकीकत नहीं है। और साथ जो भी हमारे दीगर जेल में लोग हैं, अभी जो फैसले हो रहे हैं, जो सरगोदा में एटीसी ने फैसला किया है, जो लाहौर में किया और आज भी एक फैसला मुतवक्को है फैसलाबाद में, ये पहले से तयशुदा फैसले हैं। यानी अगर इस तरह अदालतों से अवाम का एतमाद उठ जाता है तो ये बताए फिर ये अवाम किधर जाएंगे। आप तो बिल्कुल अमलन इस मुल्क में अनार्की पैदा करना चाहते हैं। आपने इंसाफ के निज़ाम को ख़त्म किया, आपने इंसाफ के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम इंसाफ का कातिल है और हम समझते हैं कि इसके खिलाफ अवाम को और वकला को और अदलिया को खुद उनके खिलाफ उठना होगा। हम अपने जज साहिबान से, चीफ जस्टिस साहब से ये मुल्तमिस है, बहुत एहतराम के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमें बताएं कि अगर आपकी अदालत हमें इंसाफ नहीं देती तो क्या हम आलमी अदालत में जाएं? क्या हम अपनी अदालती निज़ाम से मायूस हो जाएं? अदालत इस वक्त जजेस का भी बड़ा इम्तिहान है कि वो इंसाफ के लिए खड़े हों। ये वक्त गुजर जाता है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, बेरोजगारी है हमारे सूबे में, जो इस वक्त सूरत हाल है, हमें इस पर शदीद तशवीश है। मैं अपनी हुकूमत से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि वो किसी किस्म की ऑपरेशन को नहीं होने देगी। पाकिस्तान के उन तमाम लोगों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन एयर इस बेहतरीन मौसम में खड़े इस गुनाह की पादाश में कि इन्होंने फैसला किया है कि हमने आइन की बालादस्ती कायम करनी है, हमने यहाँ वोट की इज़्ज़त को बहाल करना है, हमने यहाँ एक ऐसी पार्लियामेंट की तश्कील करनी है
एक ऐसे नए पाकिस्तान की तश्कील नौ करनी है जहाँ इलेक्टेड पार्लियामेंट में पॉलिसियाँ बने, उसकी सज़ा हमें ये दी जा रही है। हम अपील करते हैं हर सुनने वाले मर्द से, हर सुनने वाली औरत से, हर जज से, हर उस जर्नल से, हर उस जर्नलिस्ट से, हर उस प्रोफेसर से जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है कि वो हमारी इस लश्कर में शामिल हो। ये लड़ाई आइन की बालादस्ती कायम वाले कोर्टों और आइन को ढूंढने वाले कोर्टों के दरमियान हमने फैसला कर दिया है। हम अपने आइन का दिफा करेंगे। आइन हमें हक देता है। जो जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हमें देख रहे हैं। आपको पता है, यू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जज साहिबान, यहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ लोगों के जमा होने पे पाबंदी है। लोग होटल से निकल के ओपन एयर में करते हैं। आप बड़े अच्छे गाउन पहने हुए जजेस, आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? क्या आपने इस जमहूरी तहरीक का साथ देना है या फिस्ताई पागलों का साथ देना है? बाजवड़ में कत्लेआम शुरू है। जो आदमी हमारा चीफ है, जो आदमी हमारा फील्ड मार्शल है, वो कुरान का हाफिज है। कुरान करीम एक इंसान की मौत को, जिसने किसी को कत्ल न किया हो, जिसने किसी का जुल्म नहीं किया हो, एक आदमी का कत्ल, कुरान करीम सारी इंसानियत का कत्ल वो करता है। आपने बाजवड़ में ऊपर से हेलीकॉप्टर, नीचे से गोलियां, वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने क्या गुनाह किया था? हाफिज साहब, आप और आपकी रिजीम इसका क्या जवाब देंगी? डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आप क़यामत पे यकीन रखते हैं? छोटे छोटे बच्चे लोगों के मर रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर उस दिन कहाँ थे जब दरिया स्वात में सियालकोट की पूरी फैमिली, एक बुढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत, बच्चियों समेत 4 घंटे पड़े रहे। 4 घंटे एक हेलीकॉप्टर उन सबको बचा सकता था। जिंदाबाद। ऐसे नहीं चलेगा। हमारे वसाइल हमारे खिलाफ आप इस्तेमाल करते हैं, जिंदाबाद। लेकिन हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान एक रज़ाकाराना फेडरेशन है। इस पे आइन की बालादस्ती होगी, वोट से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। शाहबाज भाई, आपको मुबारक हो। आप जिस शहर में भी जाएंगे, कोयटा फर्स्ट, आप जिस शहर में भी जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हम खाली झंडियों से इस्तीफा करें। दिस इज द डिसीजन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ये फैसला है कि शहबाज और इसके हवलदार स्पीकर जिस शहर में जाएं, हमारी पार्टियाँ खाली झंडियों से उनके इस्तकबाल करें और फिस्तायत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद के नारे लगाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।